اب آپ کے سامنے صدارتی کلمات پیش کرنے کے لیے فضیلت الشیخ عبدالقدوس نذیر حفظہ اللہ کو میں دعوت سخن دوں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ آپ صدارتی کلمات کے ساتھ ساتھ آپ بھی کچھ ضرور ارشاد فرمائیں تاکہ ہمارے سامعین آپ سے مستفید ہو سکیں۔ جی اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک واللہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ معزز سامعین کرام، ہم میں سے کسی پر یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ کانفرنس کس مقصد کے لیے اور کس پس منظر میں منعقد کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک مرد اور ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، نازیبا بیان دیے، جس کی وجہ سے ہندوستان میں ایک واہ ویلا مچا ہوا ہے، اور اسی کے پس منظر یہ جو ہے کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے کہ ہم مسلمان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اسوہ بنیں، اس پر عمل کریں، عملی نمونہ پیش کریں۔ صرف بیان کرنے سے، تقریریں کرنے سے یہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ جو ہے مسلمانوں کے عمل کو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا عمل اپنے نبی کے طور طریقے پر کتنا ہے، اس سے دیکھ کر کے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں اسلام جو ہے یہ صحابہ کرام کے ذریعہ سے پہنچا، یہ غزوے کے دعات کے ذریعے سے نہیں، بلکہ صحابہ کرام جو تجارت کی غرض سے ہندوستان میں گئے، لوگوں نے ان کے نمونے کو دیکھا، ان کی سیرت کو دیکھا، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا، تو اس سے متاثر ہو کر کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اسی طریقے سے انڈونیشیا جو اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے، وہاں اسلام جو ہے ہندوستانی مسلمان تاجروں کے ذریعے سے اسلام وہاں پھیلا۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع، حقیقی دفاع، آپ کے اسوے پر عمل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عصمت، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اے اللہ کے رسول، اے رسول، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے، جس بات کو لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس کو آپ پہنچائیے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے حفاظت کرے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت آپ کی حفاظت کی جب کہ وہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد گنتی انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، اور ساری دنیا آپ کی مخالف تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی، اور آپ کا کوئی جو ہے کسی قسم کو کوئی نقصان نہیں کر سکا۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 94 اور 95 میں فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو آپ علی الاعلان
बरमला बेधड़क बेझिझक आप कहिए, उसका हुक्म दीजिए। वह आरिज़निल मुशरिकीन, और ये जो आपके सब से पीछे भूखने वाले हैं, चीख पुकार मचाने वाले हैं, आप पर आवाज़ कसने वाले हैं, उनसे आप दरगुजर कीजिए, एराज कीजिए। इन्ना कफ़ैना कल मुस्ताज़ीन, क्योंकि हम आपके मजाक करने वालों का, आपके इस्तेहज़ा करने वालों के लिए काफ़ी है। चुनांचे अल्लाह तबारक ताला हर दौर में, हर ज़माने में काफ़ी हुआ। चुनांचे इस दौर में भी जब उस मर्द और औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेहज़ा किया, मजाक किया, तो खुद जिन आकाओं के लिए उसने ये बयान दिया था, वही आका उसके खिलाफ हो गए। और यही नहीं बल्कि सारी दुनिया मुखालिफ हो गई। और यही नहीं बल्कि उसकी लानत की वजह, उसके इस बयान की वजह से उसकी ये लानत जो है कितने लोगों पर पड़ी, लाखों लोगों पर पड़ी, जो इधर उधर अपने रोटी का कपड़ा का इंतज़ाम कर रहे थे, अपने बच्चों के लिए कमा रहे थे, उनकी कमाई बंद रुक गई, वो नौकरी से अपने रुक गए, उनकी लानत जो है उन पर पड़ रही है। आज उसकी हालत यह है कि वो इधर उधर छुपी फिर रही है, और वो मर्द भी छुपा फिर रहा है और उसको कह रहा है कि हमारी जान का खतरा है। तो ये कौन सा इंतज़ाम जो हो रहा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा की आयत नंबर 67 में फरमाया, वबल्लिग मा उनज़िला इलैक वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि अल्लाह तबारक व तआला जो है आपको लोगों से बचाएगा, हिफाजत करेगा। इसी तरीके से आयत अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हिज्र की आयत नंबर 95 फरमाया, इन्ना कफ़ैनाकल मुस्ताहज़ीन, कि है नबी हम आपके इस्तेहज़ा करने वालों के लिए काफ़ी हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मुसलमानों को अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की हिफाजत करेगा। और मुसलमान जो है जज्बात में आकर के कोई ऐसा काम ना कर बैठें कि जिसकी वजह से मुसलमानों का नुकसान हो। और आम तौर से ये इस्तेहज़ा करने वाले, नबी पर आवाज़ उठाने वाले आपके अज़वाज मुतहरात को ज़रिया बनाते हैं। और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ख़ास तौर से, और ये कोई नई बात नहीं है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसने टिप्पणी की, मजाक उड़ाया और आपका इस्तेहज़ा किया। बल्कि अंग्रेज़ों के ज़माने में, जब इस्तेमार का ज़माना था हिंदुस्तान में और वहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उस दौर में एक पादरी ने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर आवाज़ उठाई थी और ये कहा था कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र ये 9 साल की थी। जिस वक्त नबी करीम शादी तो हुई थी कि 6 साल की उम्र में, जब उनकी उम्र 6 साल की थी, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर दाखिल हुए तो उस वक्त उनकी उम्र जो है 9 साल थी। तो वो कहता है पादरी मुसलमानों को खिताब करके कि तुम लोगों का ये मानना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 मर्दों की कुव्वत हासिल थी, तो एक नाबालिग लड़की, 9 साल की लड़की कैसे जो है एक 40 से कुव्वत रखने वाले, 40 मर्द की कुव्वत रखने वाले मर्द की ताकत बर्दाश्त कर सके। उसने चैलेंज कर रखा था, मुसलमान परेशान थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दफ़ा के लिए, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से दफ़ा करने के लिए एक आलिम को पैदा किया, एक आलिम को आगे बढ़ाया। अगर मेरा हाफ़िज़ा साथ दे रहा है तो हज़रत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह से वो आए और उन्होंने कहा कि आए ईसाइयों, तुम्हारा ये मानना है कि ये मरियम अलैहिस्सलाम ये अल्लाह की बीवी हैं और ईसा अलैहिस्सलाम आपके बेटे हैं, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला की बिस्तरी से ये पैदा हुए। तो उन्होंने कहा
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत कुछ भी थी महदूद थी, सिर्फ 40 आदमियों की कुव्वत थी, लेकिन अल्लाह ताला की कुव्वत जो है ये लामहदूद है। तो जब एक औरत एक लामहदूद कुव्वत को बर्दाश्त कर सकती है, तो एक औरत या एक लड़की महदूद कुव्वत वालों को क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकती। उसकी आवाज़ बंद हो गई। मेरे दोस्तों, कभी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाज़ जो की जाती है उनके तादुद अज़वाज की मुताहरात से, तादुद अज़वाज की वजह से कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितनी शादी की, लेकिन वो इस हकीकत को भूल जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी जो थी हुई थी उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी, और जिससे शादी हुई थी बाद रिवायतों में है कि उनकी उम्र 40 साल की थी। और आम तौर से लड़का जो है अपने से कम उम्र वाली लड़की को से शादी करता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ख्वाहिश नफ्सानी की ख्वाहिश होती की वजह से शादी करते तो कभी भी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी नहीं करते, बल्कि आपकी शादी मक्का में एक से एक लड़की से, आपसे कम उम्र वाली लड़की से शादी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐन ज़माने की ज़िंदगी में उम्र में कैसी एक औरत से शादी की जो आपसे उम्र में 15 साल बड़ी थी। और आपने अब उनकी ज़िंदगी में जब तक वो ज़िंदा थी कोई दूसरी शादी नहीं की, और उनसे तकरीबन 50 बरस की उम्र तक उनके साथ ज़िंदगी गुजारा। उसके बाद आपने दूसरी शादी की तो सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया, जो वो भी बेवा थी और आपसे उम्र में भी ज़्यादा थी। फिर एक ही शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 11 या 13 बीवियों के बीच में सिर्फ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक ऐसी आपकी बीवी थी जो बाकिरा थी, बिक्र थी। बाकी तमाम औरतें या तो मुतल्लका थीं या तो शादीशुदा थीं। आपने शादी किया और आपने किसी मसलहत से की, और हर औरत की कोई ना कोई खसूसियत थी। चुनांचे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खसूसियत थी कि बहुत ही ज़्यादा ज़हीन और फतीन थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरेद कर ऐसे ऐसे मसाइल पूछे जो उम्मत के लिए आज काम दे रहा है। इसी तरीके से उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपने शादी की जो बहुत ही साहिबुर राय थी। आप जानते सुना होगा कि सुलह हुदैबिया के मौके पर जब आपने सुलह कर लिया और आपने लोगों से कहा कि अरे लोगों, अपने अपने कुर्बानी को ज़बह कर दो, जानवर जो लाए उसको ज़बह करके और सर मुड़ा लो और यहीं से वापस चले जाते हैं। लेकिन चूंकि उसको मुसलमान ये समझते थे कि हमने इसमें झुक करके ये सुलह किया है। और मुसलमान जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबे किराम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। आप परेशानी के आलम में उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खेमे में दाखिल होते हैं। देखा कि आप परेशान हैं तो पूछा क्या मामला है। तो आपने फरमाया कि क्यों ना मैं परेशान हूँ, मैं लोगों को हुक्म दे रहा हूँ कि अपने अपने जानवरों को ज़बह करो और अपने बाल मुड़ाओ, लेकिन लोग मेरी बात को मान नहीं रहे हैं। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस वक्त आपको मशवरा दिया कि अल्लाह के रसूल, आप किसी से कोई बात मत कहिए, आप सीधे जाइए और अपनी कुर्बानी जो है अपने जानवर को ज़बह कीजिए और सर मुड़ाइए, लोग खुद ब खुद उस पर अमल पैरा हो जाएंगे। चुनांचे आपने ऐसा किया तो रिवायत में आता है कि सहाबे किराम एक दूसरे पर टूट पड़े, यहाँ तक कि मालूम होता है कि एक दूसरे को कत्ल कर देंगे और कुछ जानवर ज़बह करने लगे, सर मूटने एक दूसरे का मूटने लगे। तो ये जो है मेरे दोस्तों, इसी तरीके से एक जोएरिया एक है और एक आपकी बीवियों में से बेगमात में से जोएरिया बिनतुल हारिस एक हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की है। बनुल मुस्तलिक की बेटी के कबीले से थी। जब आपने उनसे शादी आपने गज़वा किया तो वहाँ के कुछ औरतों को कैदी बना लिया जो
लौंडी बन करके आई, वो किसी सहाबी के हिस्से में पड़ी। सहाबे किराम ने कहा कि वो जुवैरिया जो है ये कबीला के सरदार की बेटी हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी के लिए लायक व ज़ेबा नहीं है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और कहा कि तुम जुवैरिया को मुझे दे दो, इसके बदले में जब कभी कोई लौंडी आएगी तो हम उसके बदले में तुमको दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं खुशी बखुशी आपके हवाले कर रहा हूँ। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ले करके और आज़ाद करके उनसे शादी कर ली। तो सहाबे किराम ने के हिस्से में जितनी औरतें थीं सबों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए वो कह दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये ससुराल की लड़कियां हैं, हम उनको अपने कैद में अपनी लौंडी बना करके नहीं रखेंगे। और सबों ने उसी रात उसी वक्त अपने अपने हिस्से की लौंडियों को आज़ाद कर दिया। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जुवैरिया जितनी बाबरकत कोई औरत नहीं साबित हुई अपने कबीले के लिए, कि उनकी वजह से उनके कबीले की जितनी औरतें लौंडी बन करके आई थी सब आज़ाद हो गई। तो मेरे दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को हम अपनी ज़िंदगी का नमूना बनाएं, उस पर हम अमल करें, ताकि लोग जो है देख करके उनको पता चले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे। क्योंकि वो किताबें आपके नहीं पढ़ते हैं, आपकी बातें नहीं सुनते हैं, आपकी बातें तो आपके जो मानने वाले आपके भाई भी नहीं सुनते हैं, से जाए कि गैर मुस्लिम भी सुने। लेकिन जब हम उसको अमली नमूना पेश करेंगे, हमारे अमल को देखेंगे, हमारे किरदार को देखेंगे, तो वो उससे देख करके मुतासिर होंगे कि जब ये उनके उम्मती ऐसे हैं तो वो उनके सरबराह उनके नबी का किरदार कैसा रहा होगा। लेकिन अब अफसोस ये है कि आज मुसलमानों का किरदार, उनका कैरेक्टर, उनके गुफ्तार वो जो है गैर मुस्लिमों से बदतर है। गैर लेन देन के मामले में ख़ास तौर से गैर मुसलमान जो है गैर मुस्लिमों से गए गुजरे हैं। ये मुझे याद है कि एक मौलाना साहब की तकरीर सुन रहा था यूट्यूब पर, वो कह रहे थे कि एक फला मेरा दोस्त है गैर मुस्लिम, वो कह रहा था कि फला आदमी, एक मुसलमान को कहा कि वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि पता ही नहीं लगता कि वो मुसलमान है। यानी गोया कि मुसलमान होने के सर्टिफिकेट यह है कि उसके अंदर तमाम बुराइयां हों, और अगर किसी के अंदर कोई बुराई नहीं है तो इसका मतलब है कि वो मुसलमान नहीं है। तो मेरे दोस्तों, आज जो है मुसलमान को पर जो ये है शर्मसारी या इसी तरह रुसवाई, जिल्लत जो मुसल्लत है, ये उनके किरदार की वजह से है, उनके अखलाक की वजह से है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को हम लोगों के सामने उजागर करें, पेश करें, ताकि लोग जो है उससे देख करके मुतासिर हों। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।